In continuation of the lecture number 3rd, the stereoisomer or stereochemistry of organic compound at MSc फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कन्फर्मेशन ऑफ आइसोमर. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द पार्ट ऑफ stereoisomer, structural isomer and constitutional isomer. As you can say, the second part हमने एक्सप्लेन किया था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एनान्शोमर और डायस्टेरोमर का कंसेप्ट. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ आइसोमर. The point is what conformational of isomer in what chair conformation and board conformation. Suppose if we are having a cycloalkane, that is the cyclohexane molecule, which are having the molecular formula C6H12. So this cycloalkanes, this is the planar molecules, but actually the shape of cycloalkanes is in the form of chair conformation and board conformations. यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन में ये जो हाइड्रोजन एटम्स है, दिस हाइड्रोजन एटम्स, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ EH, इट इज कॉल्ड एज व्हाट एक्सियल हाइड्रोजन. एक्सियल. सो दिस इज एक्सियली हाइड्रोजन एंड दिस वन इज व्हाट इक्वेटोरियली हाइड्रोजन. इक्वेटोरियल, इसको इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहते हैं. दिस इज एक्सियल, दिस वन इज व्हाट एक्सियल हाइड्रोजन, दिस वन इज इक्वेटोरियल. एज यू कैन से रिप्रेजेंटेशन व्हाट इक्वेटोरियल हियर, axial and equatorial. What is that? This hydrogen is equatorial, this axial, this one is axial, this one is equatorial. Again this is axially, this one is equatorial, axially, equatorially. This one is what axial hydrogen, equatorial, axial. So this representation, as you can say, this one is the axial hydrogen atoms. So what is the conformation? Conformation, how to write the conformation, conformational isomer in chair conformation and board conformation. This is we have been written, this is called as what chair conformation. इसमें हमें नेट सेट गेट और पीजी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. एज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ चेयर एंड बोर्ड conformation. So this is a cyclohexane molecule. As you can say, this is one of the hydrogen, axially hydrogen, equatorial, axial, equatorial, axial, axial. This one is axial, this one axial, this one is axial. So this vertical bond we can represent it. Vertical bond is called as you can say vertical. ये जो vertical bond है ये axial होता है. क्या होता है? Axial hydrogen. Horizontal. So as you can say, this is not horizontal, but it is slightly bond. It is can say what? Slightly, or we can say diagonal. Diagonal. It is not a relation. It is not diagonal. So this is representation. As you can say, equatorial. What is that? Equatorial. So this is the vertical hydrogen and equatorial hydrogen atoms. As you can say, this is the axial. This one axial. We have been represented axial hydrogen atoms. What is the equatorial? This one equatorial. This is a diagonal relations. As we can say, this is what equatorial hydrogen atoms. हम इसको यहाँ पे represent करते हैं. So that is equatorial hydrogen atom. What is the stability of this is the chair conformation and board conformations. As you can say, this is known as chair conformation. So board conformation we have been written here. This is the board conformation. Again, board conformation of what? Cyclohexane. So these two hydrogen atoms in the board conformation, the name of this is the hydrogen atoms. As you can say, this is the flagpole. It is between these two hydrogen atoms is one of the interaction. The name of the interaction is called a flagpole interaction. What is that? Flagpole. This interaction is called as what? Flagpole interaction. So due to this presence of the flagpole interaction, this बोर्ड कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल देन चेयर कन्फर्मेशन. यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है. स्टेबिलिटी इन चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन. तो बोर्ड कन्फर्मेशन यहाँ पे लेस स्टेबल होता है चेयर कन्फर्मेशन से. इट इज ड्यू टू व्हाट? इफ वी गिव द नेम नंबरिंग ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द कार्बन एटम, one carbon, second one, third one, fourth, and this is the fifth. यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का हाइड्रोजन एटम्स है, दिस फोर्थ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इट इज अवे फॉर टू ईच अदर
it's away far to each others. That's why this steric crowding, the absence of steric crowding in chair conformation, but we can say this is the presence of flagpole interaction between the hydrogen atoms of carbon number 1 and carbon number 4, carbon number 1 and carbon number 4. So these types of the hydrogen, as you can say, this carbon number 1, 2, 3 and this one is the fourth carbon. So that's why we call these two hydrogen atoms, or it is the interaction, these types of the interaction is called as what? फ्लैगपोल इंटरेक्शन. तो ये फ्लैगपोल इंटरेक्शन होने की वजह से ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है. कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोअल्केन्स, यहाँ पे सपोज साइक्लोहेक्सेन है. इस साइक्लोहेक्सेन में हम सीस और ट्रांस है ना, सीस और ट्रांस कैसे बता सकते हैं? एज यू कैन से दीज आर व्हाट? ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम यहाँ पे कैसे बता सकते हैं? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन सीस एंड ट्रांस? एज यू कैन से इन साइक्लोअल्केन, साइक्लोहेक्सेन नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन में सीस और ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. जैसे कि ये कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया, दिस इज अ चेयर कन्फर्मेशन एंड यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया हमने ये एक्सियल हाइड्रोजन एंड दिस वन इज व्हाट? एज यू कैन से दिस CH3 ग्रुप. यहाँ पे आप मेथिल ग्रुप ले सकते हैं और ये मेथिल ग्रुप है. अनदर चेयर कन्फर्मेशन वी कैन टेक सच टाइप्स ऑफ द चेयर कन्फर्मेशन, और यहाँ पे हम लेते हैं ये एक्सियली और ये लेते हैं इक्वेटोरियल. अब इसमें से हमें पूछा जा सकता है कि ये सीस है या ट्रांस है, ये कंपाउंड सीस है या ट्रांस है. इसमें स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच कन्फर्मेशन इज व्हाट? मोस्ट स्टेबल. 1 2 1 3 एंड 1 4. इसमें 1 2 1 2 1 3 एंड 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किल, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किल, एज यू कैन से डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किल ग्रुप. इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है. 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड और 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड. यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है. जैसे कि हमने कंपाउंड यहाँ पे लिया, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस टाइप्स ऑफ द कंपाउंड. सी हियर, सो दिस इज व्हाट? साइक्लोहेक्सेन. So this cyclohexane are what? 1 2 disubstituted cyclohexane. What is that? 1 2 disubstituted. यहाँ पे 1 2 disubstituted है. 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन. अब यहाँ पे हमें ये अबो द प्लेन, हमने यहाँ पे ये अबो द प्लेन लिखा और ये बिलो द प्लेन लिखा. मतलब अबो है तो ऊपर लिखो, बिलो है तो नीचे लिखो. ऐसे कैसे? इट इज इन द फॉर्म ऑफ चेयर कन्फर्मेशन. देखो ये अबो द प्लेन है, हमने अबो ऊपर लिखा, बिलो द प्लेन है तो इसको हमने नीचे लिखा. तो ये हुआ हमारा एक्सियली और ये भी हुआ हमारा एक्सियली. मतलब 1,2 एक्सियली एक्सियली, 1 एक्सियली 1 एक्सियली 2 एक्सियली, ये होता है हमारा कौन सा? दिस इज अ ट्रांस आइसोमर. वेरी सिंपल. यहाँ पे होता है ट्रांस आइसोमर. जैसे कि 1 2 डाइमेथिल लिया, ये अबो द प्लेन लिखा, ये बिलो द प्लेन, ये बिलो अबो द प्लेन लिखा. सो दिस इज द बिलो द प्लेन, this one is the below the plane and this one is above the plane. So this is below the plane, as you can say this is below the plane, and this one is above the plane. So as you can say below the plane and above the plane. So this is called as what? As you know, these types of the conformation is also trans conformation. जैसे कि हम इन कंटिन्यूएशन में सपोज हमारे पास एक एग्जांपल हम दूसरा 1 3 या 1 4 डाइसब्स्टिट्यूट लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द 1 4 डाइसब्स्टिट्यूटेड, 1 4 डाइसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, 1 4 disubstituted. So we are having this cyclohexane and this is the 1 4 dimethyl cyclohexane. यहाँ पे हम इसका चेयर कन्फर्मेशन लेंगे. सबसे पहले हम इसको सीस और ट्रांस बनाएंगे. यहाँ पे हम इसको लेते हैं बिलो द प्लेन और इसको करते हैं बिलो द प्लेन. मतलब दोनों भी मेथिल बिलो द प्लेन है. 1 4 पोजीशन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर. अब हमें ये सीस है, ये हमें पता है ये सीस है बिकॉज ऑफ द 2 planes are on the same. यहाँ पे दो प्लेन कैसे सेम है, that's why it is called as cis isomer. अब यहाँ पे 1 और 4 पोजीशन, बिलो है नीचे लिखो, बिलो है नीचे लिखो. So these types of the position, as you can say, this is the equatorial and this is the axially. As you can say equatorial axially or axially equatorially, this is called as what?
एज वी कैन से सीस आइसोमर, इसको कहा जाता है सीस आइसोमर। वैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ चेयर एंड सीस एंड ट्रांस कन्फर्मेशंस हियर। सो दिस व्हाट 1,2-dimethyl trans 1,2-dimethyl, so this trans 1,2-dimethyl cyclohexane, यहाँ पे 1,2-dimethyl cyclohexane है, यहाँ पे हमने लिया 1,3-dimethyl cyclohexane, 1,3-dimethyl cyclohexane। यहाँ पे देखो ये अबोव द प्लेन लिखा, ये अबोव द प्लेन लिखा, दोनों भी अबोव द प्लेन है, इसको अबोव द प्लेन चेयर कन्फर्मेशन निकालने के बाद हमने अबोव द प्लेन लिखा। सो एक्सियली बोथ आर एक्सियली 1,3 एक्सियली it is called as what cis conformation। again what this below the plane and below the plane, so that is called, this one is below and this one is the below। तो यहाँ पे हमने इसको बिलो लिखा और इसको भी बिलो लिखा, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दैट इज हाउ वी कैन राइट दिस इज 1,3-dimethyl 1,3-dimethyl, लेकिन इसका पोजीशन कैसा है? सो 1 का पोजीशन और 3 का पोजीशन 1 है, दिस इज व्हाट इक्वेटोरियल एंड दिस इज आल्सो इक्वेटोरियल। सो equatorial, so this equatorial 1,3-dimethyl cyclohexanes are what cis conformation। again axially 1,3-dimethyl is called as what again cis conformation। तो ये दोनों भी क्या हुए? cis conformation यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 1,4-dimethyl। we are having these types of the compound, so that is 1,4-dimethyl cyclohexane। यहाँ पे 1,4-dimethyl cyclohexane है, मेथिल के अकॉर्डिंग हम दूसरा भी ग्रुप ले सकते हैं, सो दैट इज व्हाट 1,4-dimethyl। अब देखो हमने 2 बार ये कोशिश किया कि अबोव द प्लेन लिखा, अबोव द प्लेन चेयर कन्फर्मेशन में उसको ऊपर लिखा, ऊपर मतलब ये हुआ एक्सियली और ये हुआ बेटा एक्सियल, ये हुआ इक्वेटोरियली। सो दैट इज वी कॉल 1,4 एक्सियली इक्वेटोरियली, ये होता है हमारा cis कन्फर्मेशन। क्या होता है ये होता है हमारा cis कन्फर्मेशन। 1,4-dimethyl axially equatorially or equatorial axially, it is called as cis। again what another types of the cis conformation, that is what equatorial axially, as we can say axially equatorial or equatorial axially, so this is called as what cis conformation। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हम ट्रांस का देखते हैं, तो 1,4-dimethyl का सेम फेनोमेनन, सो दैट इज व्हाट 1,4-dimethyl cyclohexane। so it is one of the cis conformation or trans conformation, is that so this is यहाँ पे हमने इसको above the plane लिखा, इसको below the plane लिखा। above the plane below the plane, above है तो ऊपर लिखना है, below है तो नीचे लिखना है, above below। तो यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा है? एक्सियली है, और ये कौन सा है बेटा? एक्सियली है। सेम फेनोमेनन, बिलो लिखो और अबो लिखो, बिलो है तो नीचे लिखा इक्वेटोरियल हुआ, अबो है तो उसको ऊपर लिखा ये एक्सियली हुआ। बिलो है तो नीचे लिखना है, अबो है तो उसको ऊपर लिखना है, और ये ऊपर आया तो ये एक्सियली हुआ, नीचे आया तो ये सॉरी दिस इज व्हाट इक्वेटोरियल, दिस वन इज आल्सो इक्वेटोरियल। अब इसका एक्सियली क्या होता है? ये वाला एक्सियली होगा, इसका ये वाला एक्सियली होगा और ये वाला एक्सियली होगा, लेकिन ये दोनों भी क्या है? सो एज यू कैन से 1,4 इक्वेटोरियल और एक्सियली इट इज कॉल्ड एज ट्रांस कन्फर्मेशन। तो ये होता है ट्रांस। यहाँ पे हमने 1,4, 1,3 और 1,3, 1,2, 1,3 और 1,4 डायल्किल सब्स्टिट्यूटेड इन साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन, हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कन्फर्मेशन हम यहाँ पे बता सकते हैं cis और trans। So that is how, so in summary as we can say, that is called as in short cis and trans conformations of the this substituted 1,2-dimethyl, as you can say 1,2-dialkyl substituted। so यहाँ पे 1,2-dialkyl है और यहाँ पे 1,3-dialkyl and 1,4-dialkyl। in short form we call cis and trans axially equatorial, 1,2 cis होता है, axially और equatorial के लिए trans होता है। अब 1,3 की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो axially और equatorial cis रहेगा, और axially equatorial और equatorial axially ये रहेगा trans। 1,4 डायसब्स्टिट्यूट की हम बात करते हैं, एक्सियली इक्वेटोरियली 1,4 एक्सियली इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियली ये होता है cis, और एक्सियली और इक्वेटोरियल ये होता है ट्रांस। यहाँ पे हमें नेट सेट गेट एज वेल एज इन योर पीजी एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। सो कन्फर्मेशन ऑफ व्हाट? साइक्लोअल्केन्स। कन्फर्मेशन ऑफ व्हाट? साइक्लोअल्केन्स एज इन व्हाट? चेयर कन्फर्मेशन एंड बोर्ड कन्फर्मेशन। बोर्ड और चेयर कन्फर्मेशन में आपको स्टेबिलिटी पूछा जा सकता है। चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है बोर्ड कन्फर्मेशन से, है ना। यहाँ पे कुछ बोर्ड कन्फर्मेशन और चेयर कन्फर्मेशन की हम डिस्कस करते हैं।
कि एक स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे याद रखना है. सो विच वन इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? सो दैट इज चेयर कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन ट्विस्ट बोट एंड द हाफ चेयर. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी हम यहाँ पे देखते हैं. चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्विस्ट बोट एंड हाफ चेयर. ये आपको कंप्यूटर एग्जाम में इस स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा. चेयर फॉर्म ट्विस्ट बोट एंड हाफ चेयर. हाफ चेयर यहाँ पे सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है. उसके बाद में हमने 1,2-डाइमेथिल, 1,3-डाइमेथिल एंड 1,4-डाइमेथिल ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे एक्सप्लेन किया. सो दिस इज द पार्ट ऑफ we have completed conformation in cycloalkane, especially in cyclohexane.